And what's the nature of man? What does the Bible talk about it? We've been seeing things systematically. We'll move forward from here, where last what we read was the Bible says that we are like beasts. Men are like beasts, like dogs, as the word of God calls them. Strange, because he's a God who loves us. And then why does he use such words? Because that's what has happened. That's what has happened. He's got the right to call us what he calls us. And the reason is, if we notice, because there is too much of pride within us. When someone in authority, when they reprimand, if they say something, that's not taken well. And there are reactions to it. But God has shown in his authority, he's got the right to reprimand. And here, he's calling us names. What do? We just ditch him and say that, oh, how can he say that? Suppose if another person were to say this to another, other two were to say this to each other, I don't know what would have happened. I shudder to think. But here's God, he's calling us something. The reason is because man has been behaving like that. We never see the way we behave and what we instigate to get that reaction. Hallelujah. Let's read that last verse, or our last scripture that we read, and let's move forward. We'll read from Philippians chapter 3 verse 2. फिलिपियों का तीसरा अध्याय, उसका दूसरा पद। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। Hallelujah. You see that? What is he calling those? He's calling them dogs. And who's writing this? Apostle Paul. Now what are you going to condemn Paul? Because if this was said to us, and it is being said to us, all those who do evil, this is what the word tells us. So are we going to take offense, or are we going to say, no, I am not like that? I'll work upon it and say that, no, I cannot be, because I am a creation of God. Yes, my actions for a while have said something of that sort, but I will not remain in that. Hallelujah. There are times when such words inspire us. Even though the statement is negative, inspires us positively. Hallelujah. But fundamentally, if there is everything that is dished out at us, if we are taking it in the negative, then that is what we will do, because what we have inside is what we will understand outside. Because anything good that comes to us, we will never be able to accept it. And the word of God says everything that is good that comes from God, which comes from God. And where there is good, there is God. Because God is good. These beasts that the Bible talks about, ये जो क्या कहते हैं, जानवरों के बारे में जो परमेश्वर का वचन कहता है, आप इसकी कल्पना कीजिए, ये जो जानवर है, ये अपने धन के बारे में भी कभी कभी बड़ाई करते हैं। मतलब जो चीजें उनके पास हैं, ताकत हो सकता है, क्या कहते हैं, रुतबा हो सकता है, दिखावट हो सकता है, मतलब जिस तरह से वो दिखते हैं वो हो सकता है। तो वो जो धन है अपने पास, उसकी भी बढ़ाई करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, हमेशा उसका ढंडोरा पीटते रहते हैं। दे शो ऑफ। हालेलुया। यकीन ना आता हो, इसको हम देखते हैं। आइए भजन संहिता उसका 49वां भजन संहिता उसका 10वां पद से आगे पढ़ते हैं। Psalm 49 verse 10। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं, और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं।
ओके, अभी उसी का 12 पढ़े। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। 20वां पद। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। हालेलुया। व्हाट इज द सामिस्ट ट्राइंग टू टेल अस हियर? क्या कहना चाहता है ये भजन संहिता लिखने वाला? वो कहता है कि हम इतने मूर्ख हो चुके हैं कि हम बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा, जो कुछ हमारे पास है उसमें हम इतने खो जाते हैं कि एक ऐसा दौर आता है जब हम समझते हैं सब कुछ हम ही से है। यह समझना ही मूर्खता है, और यह जानते नहीं है कि यह सब कुछ एक दिन खत्म होने वाला है, और जो भी बटोरा है वो हमारे काम नहीं आएगा, वो किसी और के पास जाएगा। हालेलुया। क्योंकि एक बाल हम इस दुनिया से बाहर नहीं ले जा सकते। तो ये कमा रहे हैं, ये धन, प्रतिष्ठा और रुतबा और क्या कहते हैं, सजावट, दिखावट, ये सब किस लिए? कहीं कुछ आत्मा के लिए लाभ हो रहा है क्या? नहीं। पशुओं का भी ऐसी हालत है ना। वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसका कुछ मतलब, दे डोंट हैव अ डायरेक्शन, दे डोंट हैव अ सेट गोल, बट मैन हैज। मनुष्य का एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है कि वो प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से बताया, मैं ही मार्ग हूं। कहां जाने के लिए मार्ग? पिता के पास। वो लक्ष्य है हमारा, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। अगर वो जीवन हमको समझ आता तो हम इस तरह से पशुओं की तरह नहीं जीते। इसीलिए प्रभु का वचन कहता, हम पशुओं के भांति हैं। वी आर लाइक एनिमल्स। जो क्यों जी रहे हैं नहीं पता, क्योंकि जो है बस उसी में लिप्त रहते हैं। वी आर जस्ट ड्राउन्ड इन दैट, एंड देयर आर टर्म्स, ये हमको हमारे बुद्धि से पता है, ठीक है, और वो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसका। वी यूज दैट विजडम, वी यूज दैट नॉलेज दैट वी हैव। The word of God says the knowledge only puffs. Hallelujah. तो ये सारी चीजें जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, धन होगा, जो मटेरियलिस्टिक थिंग होगा, वो तो सब कुछ दूसरे के पास चला जाएगा, ठीक है। अगर साजो सामान सजने संवरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो एक दिन ढल जाएगा। हालेलुया। और क्या कहते हैं, वो चीज अगर हम उसका इस्तेमाल अगर समझदारी के लिए कर रहे हैं, वो तो भी बिल्कुल बर्बाद होने वाला है सब कुछ, क्योंकि धन में कोई समझदारी नहीं होती। हालेलुया। ये सब पशुओं के नाई एक दिन सब खत्म होने वाला है, और वो खत्म हुए कोई याद करता है क्या उनको? नहीं। हालेलुया। मनुष्य जाति कभी कभी प्यारे कुत्ते होते हैं तो उनको याद करते हैं, लेकिन जब ये कुत्तों की बात आती है, ये कुत्तों उन दिनों की बात है जब कुत्ते कभी क्या कहते हैं, पालतू, और जिस तरह से हमने अभी उनको ट्रेन कर रखा है वैसे नहीं हुआ करते थे। ये कुत्ते बिल्कुल जंगली ही होते थे, और आमतौर से जब भी कोई मांस सड़ जाता या कोई पशु गिरकर मर जाता, या फिर यहां पर थे इंसान भी, उसको फाड़ खाते थे। ये लोग झुंड में आते थे इकट्ठा और फाड़ खाते थे। इसीलिए उनका वर्णन यहां पर किया हुआ है। हालेलुया। हमने उन्हीं कुत्तों को डोमेस्टिकेट कर दिया है, हमने उन्हीं कुत्तों को पालकर आज हम उन पर फलसफे लिखते हैं कि कुत्ते ईमानदार होते हैं। हालेलुया। क्या दौर आया है, कुत्ते ईमानदार होते हैं, मनुष्य का कोई पता नहीं। हालेलुया। जैसे हम बोते हैं ना, वैसे ही उसी की कटाई करेंगे हम लोग। What we sow, we will reap. Hallelujah. We need to understand. पशुओं के पास सब कुछ है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। ये बात याद रखें। वो जिंदगी है उनके पास शायद अच्छा माहौल है, लेकिन किस मकसद से वो जी रहे हैं ये उन्हें पता नहीं, और ना ही कोई मकसद होता है उनके पास। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, जिनको मतलब वो चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं, ज्ञान बटोरें, ज्ञान इकट्ठा करें। ज्ञान बटोरते भी हैं, दे एक्वायर नॉलेज,
कई बार वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने एक अच्छी नौकरी पानी है, एक व्यवसाय शुरू करना है। कारण क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है? कि मैं कुछ धन इकट्ठा कर सकूं, बाजू में कुछ रखूं और उसके बाद धीरे 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 बचत करते करते मैं, क्या कहते हैं, धन इकट्ठा करूं। अच्छी बात है, अपने अगर किसी में देख रेख करना है, उस उद्देश्य से किया हुआ कोई चीज गलत नहीं है। किसी और के काम आने के लिए कोई कर रहे हैं तो कोई उद्देश्य गलत नहीं है। हालेलुया। फिर क्या होता है, हम उसको धीरे धीरे से एक फैमिली शुरू करते हैं, और फैमिली में भी वही सोच, वही सीख, द सेम डॉक्ट्रिन इज इंड्यूस्ड जो आने वाली नस्ल है उनमें। और फिर एक दिन इस दुनिया को अलविदा कर चले जाते हैं। जो बटोरा हुआ, जो इकट्ठा किया हुआ धन उन संतानों के पास छोड़ जाते हैं जिनको आपने की हुई मेहनत, आपने क्या कहते हैं, बहाया हुआ खून और पसीना, वो लोग उसका कीमत नहीं जानते। अब उनके हाथ में ये सारी संपत्ति, धन, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता आपने कितना मुशक्कत किया है इसके पीछे, कितना खून बहाया है, कितना घंटे काम करके, बहुत सारे, क्या कहते हैं, बलिदान देकर, सैक्रिफाइस करके आपने ये धन इकट्ठा किया। दे डोंट हैव द वैल्यू ऑफ द इनहेरिटेंस। बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखें कि हमारे बिल्डिंग में 2 कुत्ते हुआ करते थे, जंगली थे, मतलब जिसको हम पारिया बोलते हैं, स्ट्रीट डॉग्स। बट एक और, जैसे मैंने फलसफा कहा कि वो ईमानदार होते हैं, जहां पर उनको खाना मिला वहीं पर वो, क्या कहते हैं, विश्वास योग्यता दिखाते हैं, फेथफुलनेस दिखाते हैं। तो वो फेथफुल थे, लेकिन वो दोनों मजबूत थे कुत्ते। तो कैसा था कि वो लगभग कभी कभार टेरिटरी को लेकर भिड़ जाते थे एक दूसरे से। फिर एक दिन एक कुत्ते की अचानक मौत हो गई। हालेलुया। तब वो दूसरा कुत्ता जो है वो सारी कंपाउंड में गश्त लगाने लगा। अब क्या है कि पूरा कंपाउंड उसके अधीन है। अब वो ये समझ रहा है कि मैं अकेला यहां का, मतलब ये सब कुछ मेरे अंडर है। डज ही अंडरस्टैंड कि उसने उसके वो साथी संगी में क्या खोया? नहीं, उसने ये पाया कि वो उस सारे कंपाउंड का एक लौता, क्या कहते हैं, इंचार्ज बन गया। आर वी लाइक दीस? क्या हम भी कुछ ऐसा ही प्रवृत्ति रखते हैं, विदाउट पर्पस? फिर एक दिन गुजर जाते हैं, क्यों आए थे पता नहीं, कहां गए पता नहीं, क्यों गए पता नहीं। हालेलुया। आइए एक और वचन देखते हैं, अय्यूब का किताब, उसका 11वां अध्याय, उसका 12वां पद। जोब चैप्टर 11 वर्स 12। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। हालेलुया। और कितने उदाहरण दूं, प्रभु क्या कहता है मनुष्य के बारे में। वही परमेश्वर, वही मनुष्य जिसके लिए उन्होंने अपना एक लौता पुत्र भेजा, उनके बारे में ही ये उच्चारण है। The words are used for the same human being. निर्बुद्धि। और हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है। यहीं से तो घमंड उत्पन्न होता है कि अगर जानते पूरे वचन को तो ये जानते कि जीवन स्थिर नहीं है। स्थिर सिर्फ वो है, स्थिर सिर्फ वो है जहां हम जाने वाले। दोनों जगह है, दोनों जगह स्थिर है, या स्वर्ग या नरक। हालेलुया। निर्णय हमको अभी करना है, क्योंकि द टाइम ऑफ सैल्वेशन इज नाउ। अभी वो समय है। जो निर्णय हम करते हैं और जिस तरह से हम जीते हैं, यकीन माने वही आखिर तक काम आएगा। क्योंकि बार बार कहता हूं, हमें नहीं पता कि समय कितना बाकी है। हम उस विश्राम के समय में अंदर आ चुके हैं। 7वें दिन में हम अंदर आ चुके हैं। अब यह बात कभी भी हो सकती है,
और हम लगे पड़े हैं अपने ही उलझनों में। हालेलुया। आंख नहीं खोलेगी क्योंकि उलझन भारी है, दुनिया हावी है। प्रभु का वचन हमारे लिए उस वक्त निर्भल साबित होता है जबकि यह निर्भल को बलवान करने के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए जो जिस पर दुनिया हावी है, उनके लिए तो प्रभु का वचन निर्भल साबित होता है। इन्हीं के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है। हालेलुया। लेट्स सी व्हाट द अपोस्टल पीटर इज टॉकिंग अबाउट। दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय, उसका 19 से लेके 22 तक का पद पढ़ते हैं। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 19 to 22। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग को न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। यू नो व्हाट, ये पतरस जो जिस नीति वचन का यहां पर वो उल्लेख कर रहा है, दैट इज फ्रॉम प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 11। हालेलुया। यहां पर आप अगर इसको बात देखें तो ये जो यहां पर अंग्रेजी में वहां पर लिखा है a sow is that is washed returns to her wallowing in the mud. A sow is a female pig. हालेलुया। उसको धुलाया हुआ है, वो धुली हुई है, और धुलने के बाद वो मट्टी में जाती है। आई कहां से थी? मिट्टी से, लेकिन वो धुलने के बाद फिर मट्टी में जाती है। एक कुत्ता अपने ही उल्टी में कुप के पास फिर लौटता है, क्योंकि सारी चीजें उनको दी गई थी। वो अब अपने आप को वो सोच रहे हैं कि वो आजाद हैं। ये सिर्फ एक कल्पना है कि वो आजाद हैं, लेकिन वो नहीं जानते वो दासत्व में है, और सड़ेपन की दासत्व में है। दे आर इन स्टेट ऑफ बीइंग रॉटन। वैसे दासत्व में है, वैसे स्लेवरी में है वो लोग। और इन चीजों ने इनको ऐसे जकड़ रखा है कि यहां से अभी छूटना नामुमकिन है, क्योंकि कितनी भी भलाई करे, ये दुनिया की आत्मा उन्हें नहीं छोड़ने वाली। हालेलुया। यही प्रभु का वचन कहता है। इट इज आगे चलेंगे जब पतरस हमसे कहता है कि इट वुड हैव बीन बेटर, यहां पर 21 इसमें कहता है, इट वुड हैव बीन बेटर फॉर देम फॉर नॉट टू हैव नोन द वे टू राइचियसनेस। ये बेहतर होता अगर ये लोग धार्मिकता की जो 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 कदम है वो नहीं जानते, इसका उनको ज्ञान नहीं होता। ये बेहतर होता, कम से कम न्याय के दिन ये तो कह पाते कि प्रभु मैं इन चीजों को नहीं जानता। लेकिन अब व्हाट्स द एक्सक्यूज? व्हाट्स द एक्सक्यूज? ज्ञान कुछ नहीं करता। हालेलुया। ज्ञान कुछ नहीं करता। ज्ञान केवल अपने आप को भरता है, और क्या कहते हैं, इट पफ्स, घमंड दिलाता है कि मुझे ज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान कर सकता है वो है नम्रता का जीवन, हम्बलिंग योर लाइफ, disciplining your life and following Christ. Well, that is when it has caused this effect. Hallelujah. वो वचन कभी लौटता नहीं है अपना काम किए बगैर।
ये परमेश्वर का उपाय है हमारे लिए। लेकिन जब हमने तय कर ही लिया है कि हमने अपना क्या कहते हैं अपना पीठ दिखाना है उन सारे वचनों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, अगर तय कर ही लिया है तो आप बताइए, इसके बगैर जो उल्लेख यहां पर किया है किसके बारे में बात करता है जानते हैं? अब जोर गौर से एक बार फिर पढ़ते हैं हम इसको। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट अनबिलीवर्स, इट इज टॉकिंग अबाउट बिलीवर्स। एंड हाउ शॉकिंग दैट कैन बी, इट्स टॉकिंग अबाउट बिलीवर्स। वही 19 to 22। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो सड़ाहट के दास हैं, सड़ाहट के दास। दे आर वेस्टिंग अवे, मतलब गल रहे हैं, रॉटन हो रहे हैं दिन ब दिन, और उसी के दासत्व में हैं ये लोग। ओके, गो अहेड। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब हालेलुया। वे जब जब वे हमने सब कुछ, हमारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने घुटने टेक दिए हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन से ज्यादा तो यहां पर आकर्षण है, हमने घुटने टेक दिए हैं। यस, गो अहेड। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। पहले से भी बुरी हो गई है। अगर जिस हालतों में परमेश्वर ने उनको खींच निकाला था, अब पहले से भी बदतर उनकी हालत हो गई है। हुई नहीं है तो होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तय कर दिया है बर्बाद अपने को अपने हिसाब से होना है। हालेलुया। और तभी हर ज्ञान, हर हर जो सहायता का हाथ, हर वो क्या कहते हैं उपाय, अपॉर्चुनिटी, उसको हम ठुकराते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो कभी भी रूल्स के हिसाब से नहीं खेलता। हालेलुया। वो हमारे कमजोरियों को जानता है और उन्हीं कमजोरियों पर वार करता है वो। और हम सोचते हैं कि ये दुनिया है, ये हमारे साथ खड़ी है। हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन एक दिन अपने आप को अकेला महसूस करोगे, और उस वक्त ये बात आगे सुनिए। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। अक्सर ये देखा गया है, आप देखें कि एक 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 कांग्रीगेशन है जो अपने आप को कहती है कि वो क्या कहते हैं बॉर्न अगेन है, बिलीवर्स हैं, वचन में बड़े हुए हैं, वचन को अहमियत देते हैं। लेकिन उनके हाव भाव को देखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग आपको जानेंगे कि आप मेरे शिष्य हो, मेरे दास हो। कैसे? आपका प्रेम देखकर, एक दूसरे के साथ प्रेम देखकर। लेकिन हम इकट्ठा होते हैं सिर्फ क्या कहते हैं एक्टिविटीज करने के लिए। हम इकट्ठा होते हैं क्या कहते हैं मेल मिलाप करने के लिए, लेकिन कोई भी आत्मा को बढ़ाने के लिए जो वचन होता है वो वचन के लिए समय और अहमियत नहीं देता। हमारे पास दुनिया में सबके लिए मौजूद क्या कहते हैं वक्त है। वी हैव टाइम फॉर एवरीथिंग। दैट इज इन द नेम ऑफ द चर्च। आई एम टेलिंग यू दिस। मैं ये आपको कलीसिया के नाम पर बता रहा हूं। ये कलीसिया के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर इकट्ठा होते हैं। वो कहते हैं मेल मिलाप। वी आर डूइंग फेलोशिप। क्या होता है फेलोशिप में? गाना बजाना होता है, और ये नाच गाना एक और दौर है। हालेलुया। यंत्र, बड़े बड़े यंत्र लेकर आते हैं, और देयर इज नो कनेक्शन उस आत्मा के साथ, उस पवित्र आत्मा के साथ, उस पाक रूह के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हम अपने टैलेंटों को दर्शाते हैं और दूसरे की वाहवाही बटोरने के लिए हमारा सब लक्ष्य होता है। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। दैट इज वाई हमने देखा अभी
कि यहां पर वापस जाना, इवन इफ वी आर क्लेंस्ड आवरसेल्व्स, वी स्टिल गो बैक टू द फिल्थीनेस। डजंट मेक सेंस इन रिटर्निंग ना, कि आखिर में हम सोचते होंगे कि यहीं पर अगर मट्टी में आना है तो बार बार जाके धुलकर फायदा क्या, हमारा तो यही है, पहचान ही यही है, तो क्या करें। अच्छा है, अच्छा है, वेरी गुड, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। एक और पद देखते हैं, एक और वचन देखते हैं, दूसरे करंथियों का 7वां अध्याय, उसका पहला पद, 2 Corinthians chapter 7 verse 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। Let's talk about some hope now. The hope is that even now, अब भी वक्त है, क्योंकि प्रभु आए नहीं है। अभी आपके कानों में अगर यह शब्द पड़ा है, वचन पड़ा है, तो अभी समय है, अभी समय है। आप कल के सूर्योदय का इंतजार मत कीजिएगा, अभी समय है। परमेश्वर के पास घुटनों के बल जाइए और प्रभु से क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए और कहिए, प्रभु मैं गलत था। आपके दिए हुए वचन प्रभु, आपके बार बार सुनाए जाने पर भी प्रभु मेरी आंखें नहीं खोली। धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मुझे कठोर शब्दों से भी प्रभु तूने लताड़ा, हमें पीड़ा हुई प्रभु, क्योंकि हम घमंड से भरे हुए थे। क्षमा चाहते हैं प्रभु, लेकिन यह तेरा हक है, यह तेरा हक है प्रभु, कि तू ही ने हमें जन्म दिया है, तू ही ने हमको नया जन्म दिया था प्रभु। और ये तेरा हक है प्रभु कि जब हम उजड़े हुए थे, जब हम बर्बाद हुए थे प्रभु, वहां से तू हमें खींच कर लाया, उस अंधकार से खींच कर लाया प्रभु, हमें उजियाला दिखाया। तेरा हक है प्रभु। और हमने आप ही को प्रभु भला बुरा कहा। आज प्रभु इन सारी चीजों से, इन मलिन चीजों से प्रभु, इस महल और इस सारी चीजों से हम अपने आप को निजात करते हैं प्रभु, प्यूरिफाई करते हैं प्रभु, धो देते हैं तेरे पवित्र लहू से प्रभु। और आपके पवित्रता में, आपके बह में प्रभु, तो कितना भला है कि हम आपको बार बार ठेस पहुंचाते हैं प्रभु। ये फिर से मुझसे ऐसी गलती ना हो कि पिता, ये आपसे मांगते हैं, दृढ़ कर अपना चलना। अब हम ऐसे पशुओं को देखते हैं, प्रभु अपने प्रियों को भी पशु बुलाता है। हालेलुया। देखते हैं, आइए एजिकियल का पहला हम ये पढ़ेंगे, पर क्या कहते हैं, स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, फिर आगे चलते हैं। हालेलुया। इट इज ऑल फॉर दोज हु ओबे, ओके। इवन गॉड कॉल्स देम एज वेल एज, मतलब उनको भी पशु का वो नाम देते हैं, किताब देते हैं। एजिकियल का उसका 34वां अध्याय, उसका 31वां पद, एजिकियल चैप्टर 34 वर्स 31। तुम तो मेरे भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। यहां पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। इट इज नॉट भेड़ बकरी, इट इज ओनली भेड़। हालेलुया। यू आर माई शीप, द शीप ऑफ माई पास्चर, एंड आई एम योर गॉड, डिक्लेयर्स द सॉवरेन लॉर्ड। ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, भेड़ बकरी नहीं, भेड़ बकरी देखना है। हालेलुया। चलिए ये पद पढ़ते हैं, मत्ती का 25 उसका 31 से लेकर 33वां पद तक पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 31 to 33। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। यहां पर देखें, हियर इज अ लिटिल सॉफ्ट, ये थोड़ा सा नरमी दिखा रहा है परमेश्वर प्रभु। और यहां पर दो पशुओं की तुलना की है, एक भेड़ और एक बकरी।
भेड़ वो जो आपने बार बार इसको अगर बाइबल स्टडी में बैठे हो तो और पिछले कई बार आपने ये सीखा होगा कि भेड़ जो है वो हमेशा अपनी गर्दन झुकाए हुए होता है। वो सिर्फ अपने चरवाहा की आवाज, उसकी आहट, कदमों की आहट, या उसके पास जो सोटा होता है वो जब जमीन पर मार मार कर चलता है तो वो आवाज सुनकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। और वो किसी को, आप इंटरनेट पे जाइएगा, यूट्यूब पर आपको ढेरों ऐसे यूट्यूब चाहिए मिलेंगे जहां पर अपने चरवाहा के अलावा जब ये भेड़ों को कोई आवाज देकर बुलाता है वो नहीं आते, लेकिन जब उनके चरवाहा जब उसको आवाज देता है किसी भी कोने में है वो लोग दौड़ के आते हैं। ये खूबी है भेड़ों की। और वही प्रभु कहता है कि मेरे भेड़, हालेलुया, जो अब बकरियां जिनके साथ घुल मिल गई हैं। बचपन में अगर ये भेड़ और बकरियों को देखा जाएगा तो इनमें आप फर्क नहीं पर कर पाओगे, क्योंकि इनके बच्चे जो है ना बिल्कुल एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं, एक दूसरे ही दिखते हैं वो लोग। तो ये हमेशा आप क्या कहते हैं, इनको थोड़ा बड़े होने का आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि इसमें से भेड़ कौन है, बकरी कौन है, क्योंकि वो अपने आपे में आ जाते हैं। दे कम इनटू देमसेल्व्स। भेड़ भेड़ ही रहती है, लेकिन बकरी दुनिया की हो जाती है। हालेलुया। ये जो है, जहां पर वो ना कभी, आप बकरियों को देखिएगा, जब भी बकरियों का झुंड चलता है तो लगभग कम से कम तीन लोग, तीन चरवाहा होते हैं उनके साथ। एक आगे चलता है, एक बीच में रहता है और एक पीछे रहता है। हालेलुया। और उनके पास वो सोटा नहीं होता, उनके पास एक पतली केन होती है, छड़ी होती है, जिनको जिनको वो चाबुक की तरह इस्तेमाल करता है उन पर। वो जब भी थोड़े इधर उधर हो जाते हैं उनको पीटता है उससे। वो बकरियों की आदत है, जहां पर भी हरे पत्तियां देखें, जहां पर भी थोड़ी हरियाली देखें, वहां पर मुंह मारने चले जाते हैं वो। प्रभु कहते हैं बकरियां मेरे किसी काम की नहीं है, इसीलिए जब वो आएंगे वो बाएं ओर बकरियों को खड़ा करेंगे, कहेंगे सब बकरियां बाएं ओर चले जाइए और जो मेरी भेड़ है वो आप दाएं ओर चले आइए। हालेलुया। हम कौन है? प्रभु की भेड़ या प्रभु का नाम जानने वाले, उनके साथ मिलजुल कर रहने वाले बकरियां? हालेलुया। उनके साथ मिलजुलना है, इसका यह मतलब नहीं है कि हमें बकरी का, भेड़ का दर्जा मिल जाएगा। हो ही नहीं सकता। दोस पीपल हु आर फंडामेंटली रॉन्ग, नो मैटर वॉट यू डू, अ गोट इज अ गोट इज अ गोट। हालेलुया। कहीं हमारी प्रवृत्ति हमें उस बकरी की तरह ना बनाए। मनुष्य का इसीलिए यह फर्क है, एक पशु कभी बकरी से भेड़ नहीं बन सकता, लेकिन मनुष्य जो बकरी की प्रवृत्ति रखता है वो भेड़ जरूर बन सकता है। हालेलुया। दैट्स द डिफरेंस। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। There was more to speak because there were things that were coming as the Lord had put on my heart. There were things that were shared earlier. You might have heard this before, but there are a lot of instances which are overlapping. I agree. But there's something new in the outcome. Hallelujah. So we close today at this point, understanding this fact that there is little time left. As I repeat again myself, that even though I would not speak to my mentor every day, I was happy about the fact that he is there, God is with him. And if in case ever I need him, I can just make a phone call, and I believe that I'll be hearing his voice. The people of God, the voice is silenced forever. Is there some kind of a voice in your life which has been speaking into your life and you want it silenced? Think about it. Because
We do not know about time. Chances are that that voice will never be heard again. So when there is time, let's remember our salvation. Let's remember all those who brought the news, the good news of God to us, of those whom God used to favor our lives. Let's recollect that and let's make peace.